Good morning, dear friend. In today's video, I will discuss the topic dispersion. In dispersion, firstly, I will discuss how we have to calculate the range for the individual series, discrete and continuous series. Dispersion. Today, I will discuss the next topic that is dispersion. Dispersion देखिए क्या होता है. Dispersion is the measure of it is a measure of the variation of items. Variation of the items. That means एवरेज में हमने कहा था कि सेंट्रल वैल्यू निकाली थी. अब हम इस टॉपिक में देखेंगे डिस्पर्जन में दो सब कईयों की क्या होते हैं, एवरेज सेम होती है पर फिर भी डाटा में वेरिएशन होता है. तो वेरिएशन हम कैसे देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं. दैट मीन्स डिफरेंट मेजर्स ऑफ dispersion that are, first one is the range, next is quartile deviation or semi interquartile range, and third one is mean deviation, and fourth one is standard deviation. These are the four measures of the dispersion. That is, first one is the range, second is the quartile deviation, next is the mean deviation, next is the standard deviation. So today I will discuss the range. That means how I have to calculate the range. Actually, range is the difference between the greatest and the smallest observation of the distribution. इसका मीनिंग है, रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज द रेंज. और वी कैन से इट इज द मैक्स वैल्यू, मैक्स माइनस मिनिमम. और अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स माइनस मिनिमम ओवर मैक्स प्लस मिनिमम. These are the two formulas through how we have to calculate the range. Range is actually known as the difference between maximum and minimum, and coefficient of range is known as the maximum minus minimum over max plus minimum. Now I will explain how we have to calculate the range for the individual series, for discrete series and continuous series. Illustration. That is, for example, calculate the range and the coefficient of range of is monthly earning फॉर ए ईयर. दैट मीन्स किसी की भी हमने मंथली अर्निंग जो है एक साल की, उसकी हमने रेंज निकालनी है. तो हमें गिवन है मंथ. देखिए, मंथ्स आर गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These are the months and monthly earning in rupees are given. That is, first month salary is 139, then 150, then 151, then again 151, then 157, then 158, then 160, then 161, then 162, 162,
173 and 175. This is the individual series because corresponding to the monthly earning we are not given the frequency. That means हमारे पास monthly earning given है ये हर एक month की. तो हमने अब रेंज देखिए कैसे निकालना है. रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम. अब देखिए मैक्स कितनी है हमारे पास, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 175. और मिनिमम देखिए कितनी है, दैट इज पूरे सीरीज में देखते हैं तो 139 है. तो इसका मतलब रेंज क्या आ गया हमारे पास, 175 माइनस 139 दैट विल बी 36. अगर हमने कॉफिशिएंट ऑफ वो निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, मैक्स माइनस मिनिमम ओवर मैक्स प्लस मिनिमम. दैट मीन्स तो 175 माइनस 139 अपॉन 175 प्लस 139. तो आई एम गेटिंग हियर 36 अपॉन 314. तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में हमारा आंसर आ जाता है 0.115. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. That means this is the way how we have to calculate the range in the case of individual series. That means range का formula क्या है, maximum minus minimum, और coefficient of range क्या है, max minus minimum over max plus minimum. Now I will calculate the range for the discrete series. This is the again next example illustration. Question is, calculate range and coefficient of range of the following series. That is, size is given. Size is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 18. Now, corresponding to the size, frequency is given. Frequency is, that is 1. Frequency is 1. Then next 13. Next is 24. It is 14, 15, 13, then 16, then 20. This is the corresponding to the size. Frequencies are given. We have to calculate the range and coefficient of range. This is the discrete series because corresponding to the size frequency is given. जिसका size 10 है उसकी frequency कितनी 1 है, जिसका size 11 है उसकी frequency कितनी है 13. That means अब discrete series में केस में आपने देखिए फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिनिमम. तो अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने मैक्स और मिनिमम लेनी है वो किस में से लेनी है, वो हमेशा हमने साइज वाले में से लेनी, फ्रीक्वेंसी से आपने कभी नहीं लेनी. जो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और मिनिमम वैल्यू लेनी वो हमेशा कहाँ से लेनी है, एक्स सीरीज में. एक्स मीन्स जो साइज वाली है, फ्रीक्वेंसी में कभी हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं लेते. तो मैक्स वैल्यू कितनी होगी हमारी, अगर देखें साइज वाले केस में 18, और मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम हमारी होगी 10. तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, रेंज इज मैक्स माइनस मिनिमम. That means 18 minus 10, your answer will be 8. Now, coefficient of range. Coefficient of range, it is also known as CR. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्स माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स प्लस मिनिमम. That means 18 minus 10 upon 18 plus 10. तो I got 28. तो आंसर कितना आ गया, 0.29. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड दिस इज द रेंज. दैट मीन्स डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमने क्या देखना है कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइज जैसे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तो इट इज ए डिस्क्रीट सीरीज. तो इस केस में हमने क्या ये देखना है कि आपने जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेनी है वो आपने साइज वाले केस में, मतलब एक्स वाले आपने रो में लेनी है और फ्रीक्वेंसी वाली रो में नहीं लेनी. तो जैसे एक्स वाली रो में हमारा मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी 18 और मिनिमम कितनी होगी 10 होगी. तो इसको सॉल्व करके हमने फॉर्मूले लगाए और हमने अपनी वैल्यू निकाली. नाउ आई विल डिस्कस द कॉन्टिन्यूस सीरीज, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. दैट मीन now the illustration is the following table.
the following table gives the age distribution of a group of 50 individuals. 50 individuals. तो जैसे एज देखो दी हुई है, एज इन ईयर्स, ईयर्स में एज दी हुई है, वो दी है 16 to 20, नेक्स्ट 21 to 25, नेक्स्ट 26 to 30 एंड 31 to 35. तो नंबर ऑफ persons are 10, 15, 17 or 8. So I have to calculate range and coefficient of range. अब देखिए क्वेश्चन, ये सम तो हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्योंकि इसमें क्लासेस दी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लासेस, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारी, तो इसका मीनिंग है ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमने वही प्रोसीजर लगाना कि हमने जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखनी है वो हमने फ्रीक्वेंसी में से नहीं देखनी. जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में से नहीं देखनी, हमने इस वाली सीरीज में देखनी है. अब बिफोर सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज जो है, सीरीज हमारी है इंक्लूसिव सीरीज में है. इंक्लूसिव मीन्स जैसे मैंने आपको पहले भी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे ये चीज है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट के साथ मैच नहीं कर रही. अब जैसे अगले वाली है, दैट मीन्स अगेन अपर लिमिट डजंट मैच विद द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड. तो इसका मतलब दिस इज द इंक्लूसिव सीरीज. तो बिफोर सॉल्विंग द सम, फर्स्टली आई हैव टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव. तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, कन्वर्टिंग इंक्लूसिव इन एक्सक्लूसिव सीरीज. ये हमारी जो दी हुई है, कौन सी सीरीज दी है, ये इंक्लूसिव थी, इस इंक्लूसिव को हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना. वो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या करना होता है, सेकंड की हमने लोअर लिमिट ले लेनी, और इसको जैसे फर्स्ट इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट फर्स्ट की, इसको सेकंड की लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट. तो सेकंड की लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ये करेक्शन फैक्टर फॉर्मूला हो जाता है. जैसे 21 माइनस 20/2 कितना आ गया, 1/2. तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5. इसका मतलब अगर हम इसको लिखते हैं 16, ये फर्स्ट नंबर वाली जो होती है हमारी लोअर लिमिट्स होती है, और सेकंड वाली क्या होती है हमारी अपर लिमिट. तो हमने क्या करना, सारी जितनी भी लोअर लिमिट है, जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ 26 to 30 और 31 to 35. तो ये हमारी है इंक्लूसिव सीरीज. अब मैं इसको एक्सक्लूसिव में देखो कैसे कन्वर्ट करूंगी. जितनी भी लोअर लिमिट है, सारी लोअर लिमिट में मैंने 0.5 माइनस कर देना है. क्या आ गया, 15.5. दिस विल बी 20.5, नेक्स्ट विल बी 25.5, नेक्स्ट विल बी 30.5. अब मैंने अपर लिमिट में क्या करना, प्लस कर देना. लोअर में 0.5 जो आया था वो माइनस करा, अपर में क्या करना था, प्लस. तो प्लस करेंगे, क्या आ गया, 20.5. दिस विल बी 25.5, दिस विल बी 30.5 and next will be 35.5. इसका मीनिंग है, अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी लिख लूंगी, तो वो है 10, 15, 17, 18. तो इसका मीनिंग है पहले हमें सीरीज कौन सी फॉर्म में दी थी, इंक्लूसिव सीरीज में. इंक्लूसिव को मैंने किस में कन्वर्ट करा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करा. दिस इज अ रूल. जब भी आपने डिस्पर्जन के केस में रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज को चेक करना है कि ये इंक्लूसिव में है कि एक्सक्लूसिव में है. अगर इंक्लूसिव में है तो एक्सक्लूसिव में चेंज कर लो, अगर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव में, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग. तो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया आपको, इंक्लूसिव को कैसे हमने एक्सक्लूसिव में चेंज करना, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लगा दिया. तो अब हम अपनी रेंज निकालेंगे. जो रेंज के लिए मैंने कहा था मैक्स माइनस मिनिमम. तो देखिए मैक्स मैंने पहले ही कहा आपको फ्रीक्वेंसी में से नहीं देखना, आपने हमेशा एक्स सीरीज में देखना होता. तो इसमें देखिए मिनिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम हमारी आ जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है 15.5 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 35.5. ये हमारी मैक्सिमम होगी, ये हमारी मिनिमम. तो क्या आ जाएगा आंसर, 35.5 माइनस 15.5, आंसर विल बी 20 years. नेक्स्ट, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा,
again max minus minimum over max plus minimum. तो आंसर कितना आ जाएगा 35.5 माइनस 15.5 ओवर 35.5 प्लस 15.5. तो आंसर will be 20 over 51. तो आंसर फाइनली आंसर will be 0.39. This is the coefficient of range and this is the range. So this is the formula. Formula is the same. The only difference is that जो हमने लेना होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेनी होती है, हमने एक्स सीरीज में देखनी होती है. अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, फर्स्टली वी हैव टू चेक वेदर इट इज इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज. तो दिस इज द formula. That means how we have to calculate the range in the case of individual series, discrete series and continuous series. Thanks dear friends. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to share with other also.